کبھی پرانے زمانے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جو سرسبز و شاداب وادی میں آباد تھا۔ وادی کے کنارے اونچے پہاڑ ایستادہ تھے اور بیچوں بیچ نہر تھی جو گاؤں کی کھیتوں کو سیراب کرتی تھی۔ اس گاؤں کے لوگ محنتی اور سادہ دل تھے۔ ان کی زندگی زیادہ آسائشوں سے خالی تھی، مگر ان کے چہرے پر قناعت اور محبت کی جھلک ہر وقت دیکھی جا سکتی تھی۔ اس گاؤں کا ایک مضبوط اور منظم نظام تھا۔ اوپر ایک بادشاہ کی حکومت تھی جو اپنے محل میں رہتا تھا، مگر کبھی کبھار عوام کے حال احوال پوچھنے آ بھی جاتا تھا۔ بادشاہ کا دل نرم اور رحم دل تھا۔ وہ اپنی رعایا کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اگر کسی کے گھر دکھ ہوتا تو اس کا دل بھی بوجھل ہو جاتا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ بادشاہ عوام تک پہنچنے میں اکثر ناکام رہتا، کیونکہ اس کے درمیان اور عوام کے درمیان وزیروں کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ یہ وزیر بظاہر بادشاہ کے خادم تھے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ذاتی فائدے اور لالچ کے پجاری تھے۔ وہ بادشاہ کو خوشامد سے بہلاتے اور عوام کو بادشاہ تک پہنچنے ہی نہ دیتے۔ وہ کہتے، جہاں پناہ رعایا بڑی خوش ہے، سب شکر گزار ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ گاؤں کے لوگ غربت اور محرومی کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ وزیروں نے ٹیکس کے نام پر ان سے اناج اور پیسے کھینچنے شروع کر دیے تھے۔ اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اس کی زمین چھین لیتے یا اس کے گھر کا سامان ضبط کر لیتے۔ انہی حالات میں اس گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم غریب تھا، مگر بہت ذہین اور دانا انسان تھا۔ وہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، لیکن فطرت نے اسے غیر معمولی سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ لوگ جب مشکل میں پڑتے تو اس کے پاس آتے۔ کوئی زمین کے بٹوارے کا مسئلہ لاتا، کوئی گھر کے جھگڑے کا اور کوئی تجارت کے نقصان کا۔ سلیم ہر ایک کی بات صبر سے سنتا اور ایسا حل نکالتا کہ دونوں فریق مطمئن ہو جاتے۔ سلیم خود بھی غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کا مکان کچا تھا، کپڑے پرانے تھے اور اکثر دن ایسے آتے جب گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتا۔ وہ سب کو یہی کہتا، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، مجھے یقین ہے کہ اللہ ایک دن حالات بدل دے گا، بس ہمیں صبر اور ایمان سے کام لینا ہے۔ گاؤں کے لوگ سلیم کی عزت کرتے تھے، مگر وزیروں کو وہ پسند نہ تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر سلیم کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی تو ان کی چالاکیاں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اسی لیے وہ اکثر سلیم کے خلاف باتیں کرتے اور بادشاہ کے دربار تک اس کا نام پہنچنے نہ دیتے۔ وزیروں نے ایک نیا طریقہ نکالا۔ وہ گاؤں کے ہر شخص سے محفوظی ٹیکس لینے لگے۔ کہتے کہ یہ ٹیکس تمہیں ڈاکوؤں اور چوروں سے بچانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی ٹیکس نہ دیتا تو اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنا کر اس سے بھی زیادہ دولت ہتھیا لیتے۔ وہ اپنی تجوریوں کو بھرتے جاتے اور عوام کا خون چوسنے میں مصروف رہتے۔ سلیم یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں کڑتا، مگر وہ بے بس تھا۔ وہ صرف لوگوں کو تسلی دیتا اور کہتا، یاد رکھو، ظلم زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایک دن انصاف ضرور غالب آتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ نہر کا پانی وزیروں نے اپنی زمینوں کی طرف موڑ دیا، جس سے باقی گاؤں کے کھیت سوکھنے لگے۔ کسانوں نے وزیروں سے فریاد کی، مگر انہوں نے الٹا ڈانٹ دیا اور کہا کہ یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ یہ سن کر کسان پریشان ہو گئے۔ ان میں سے کچھ سلیم کے پاس پہنچے۔ سلیم نے ان کی بات سنی اور کہا، یہ بادشاہ کا حکم نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ تو رعایا کے دکھ میں شریک ہوتا ہے۔ یہ وزیروں کی چال ہے۔ پھر اس نے کسانوں کو سمجھایا کہ وہ ایک تحریر بادشاہ تک پہنچائیں جس میں اصل حال لکھا ہو۔ کسانوں نے ہمت کی اور کسی طرح وہ درخواست بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے درخواست پڑھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً وزیروں کو بلایا اور پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے نہر کا پانی اپنی زمینوں کی طرف کیوں موڑ دیا؟ وزیروں نے بہانے بنانے شروع کیے، مگر بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ اس نے کہا، یہ مسئلہ حل کون کرے گا؟ اسی وقت کسانوں نے کہا کہ ایک شخص سلیم ہے جو بہت دانا ہے، وہ حل نکال سکتا ہے۔ بادشاہ نے سلیم کو بلوانے کا حکم دیا۔ سلیم بادشاہ کے دربار میں آیا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اعتماد اور باتوں میں سچائی جھلک رہی تھی۔ اس نے بادشاہ کو پورا ماجرا سنایا اور نہر کے بہاؤ کا ایسا منصفانہ طریقہ بتایا جس سے سب کی زمینیں سیراب ہو سکیں۔
बादशाह उसकी बात से बहुत खुश हुआ और कहा, सलीम, तुम वाकई एक अक्लमंद और नेक आदमी हो। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। बादशाह ने वजीरों को हुक्म दिया कि सलीम को इनाम दिया जाए। मगर जब सलीम दरबार से बाहर निकला तो वजीरों ने आपस में मशूरा किया, अगर ये शख्स बादशाह की नजर में चढ़ गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। बेहतर यही है कि उसका इनाम उसे न दिया जाए। यूं उन्होंने बादशाह का दिया हुआ इनाम अपनी जेबों में डाल लिया और सलीम को खाली हाथ वापस भेज दिया। सलीम ने जब ये देखा तो मुस्कुराया और कहा, मेरा इनाम अल्लाह के पास महफूज है। अगर दुनिया मुझे कुछ नहीं देती तो मेरा रब जरूर मुझे नवाजेगा। कुछ दिन गुजरे, बादशाह के दिल में गांव की दरख्वास्त और सलीम की सच्चाई घर कर गई। वो अक्सर सोचता कि अगर वाकई आवाम इतनी परेशानी में है तो आखिर वो क्यों मुतमईन नहीं। वजीरों की बातों पर अब उसे मुकम्मल भरोसा नहीं रहा था। उसने फैसला किया कि वो खुद गांव का दौरा करेगा ताकि रियाया की हालत अपनी आंखों से देख सके। एक सुबह बादशाह ने बगैर किसी इत्तला के काफला तैयार किया और चंद पहरेदारों के साथ गांव की तरफ रवाना हो गया। वजीरों को जब खबर मिली तो उनके ऊसान खुता हो गए। वो सोचने लगे, अगर बादशाह अवाम से बराह रास्त मिला तो हमारी सारी हकीकत खुल जाएगी। हमें जल्दी कुछ करना होगा। वजीरों ने गांव के बड़े लोगों को बुलाकर कहा, याद रखो, अगर बादशाह कुछ पूछे तो कहना कि सब खैरियत है, खेत आबाद हैं, लोग खुश हैं और किसी को कोई शिकायत नहीं, वरना तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। गरीब अवाम दिल ही दिल में परेशान हो गए। वो बादशाह को हकीकत बताना चाहते थे, मगर वजीरों का खौफ उन्हें चुप करा देता था। जब बादशाह गांव पहुंचा तो सब लोग इस्तकबाल के लिए निकले। गांव के चौक में हुजूम लग गया। बादशाह ने इधर उधर नजर डाली। इसकी आंखें सलीम पर जाकर ठहर गईं। वो सादा सा आदमी लोगों के बीच खड़ा था, मगर चेहरे पर रोशनी और बातों में वकार था। बादशाह ने उसे पहचान लिया, वही शख्स जिसने नहर का मसला हल किया था। बादशाह ने कहा, मैं इस गांव में किसी आम आदमी के घर ठहरना चाहता हूं, किसी वजीर या अमीर के यहां नहीं। वजीरों ने फौरन अपने अपने घर पेश किए, मगर बादशाह ने इनकार कर दिया। फिर उसने सलीम की तरफ इशारा किया, मैं उस शख्स के घर मेहमान बनूंगा। वजीरों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगें। वो सब मजबूरन बादशाह के हुक्म को मान गए। सलीम के घर में बादशाह के लिए कोई खास एहतिमाम न था। कच्चे सहन में पुराना बस्तर बिछाया गया, मिट्टी के प्यालों में दही और सादा रोटी पेश की गई। मगर इस सादापन में इतनी मोहब्बत और खुलूस था कि बादशाह का दिल पिघल गया। खाने के बाद बादशाह ने सलीम से कहा, तुम्हारे पास दौलत नहीं, शान और शौकत नहीं, लेकिन दिल की अमीरी तुम्हारे घर को रोशन करती है। मैं बहुत खुश हूं कि मैंने आज तुम्हारी मेहमान नवाजी कबूल की। सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। असल बादशाही कनात में है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी महरूम नहीं रहता। ये सुनकर बादशाह के दिल में सलीम की इज्जत और बढ़ गई। वजीरों को ये सब देखकर शदीद गुस्सा आया। वो आपस में कहने लगे, अगर बादशाह उसके करीब होता गया तो हम सबका इंजाम बरा होगा। हमें कोई ना कोई चाल चलनी होगी ताकि ये शख्स बादशाह की नजर से गर जाए। चनांचा उन्होंने झूठी कहानियां घड़कर बादशाह को सुनानी शुरू की। कोई कहता, जहां पनाह, ये सलीम सिर्फ दिखावे का नेक है, हकीकत में ये अपनी अक्ल से लोगों को बेवकूफ बनाता है। कोई दूसरा कहता, ये राया को भड़काता है ताकि वो आपके खिलाफ हो जाए। मगर बादशाह ने एक ही जवाब दिया, मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं कि ये शख्स कितना सच्चा है। मैं कानों से नहीं, दिल से फैसला करूंगा। कुछ ही दिन बाद 3 लोग बादशाह के दरबार में इंसाफ मांगने आए। पहला मुकदमा एक जमीन के बंटवारे पर था। 2 भाई लड़ रहे थे कि खेत किसका ज्यादा है। दूसरा मुकदमा 2 ताजिरों का था, जिनमें से एक कहता था कि मेरा माल उधार लिया गया, दूसरा इनकार करता था। बादशाह ने ये मुकदमात सुने और सोच में पड़ गया। इसने वजीरों से कहा, तुम लोग बड़े अक्लमंद बनते, हुआओ जरा इन मसाइल को हल करो। वजीर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की, मगर किसी का जवाब मुंसिफाना न था। आवाम शोर मचाने लगी कि वजीरों के फैसले नाइंसाफी पर मबनी हैं। बादशाह ने गुस्से से कहा
क्या ये है तुम्हारी अक्ल में ऐलान करता हूं कि जो भी इन मुकद्दमात का दरस्त फैसला करेगा वो मेरा खास वजीर होगा। सब लोग खामोश हो गए। अचानक एक आवाज आई, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं फैसला करने की कोशिश करूं। ये आवाज सलीम की थी। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, सलीम, आगे बढ़ो। मुझे यकीन है तुम सच्चाई के साथ फैसला करोगे। जब सलीम ने दरबार में कदम रखा तो महल की फजा में खामोशी सी छा गई। बादशाह के चेहरे पर एतमाद था और आवाम की आंखों में उम्मीद के झरने दौड़ गए। हर कोई चाहता था कि ये सीधा साधा आदमी वो करे जो वजीरों ने मुद्दते हुकूमत में ना किया। बादशाह ने चेहरा खींचकर कहा, बोलो सलीम, जो चाहो करो। इंसाफ का वजन तुम्हारे हाथ में है। सलीम ने झुकाकर अर्ज किया, जहां पनाह, मैं हजरती बादशाह के सामने सच के सिवा कुछ नहीं रखूंगा। बस मुझे अदल व इंसाफ की तलवार आजाद दे दीजिए और किसी की सफारिश या दबाव को जगह न दीजिए। बादशाह ने सिर हिलाया और उठकर ऐलान किया, जिसने भी इंसाफ किया वो मेरा खास वजीर होगा। बाकायदा हुक्मनामा अमजा कर दिया जाए। ये बात सुनकर वजीरों के पैरों तले जमीन निकल गई। उनके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी, मगर दरबार की रौनक में झूठ छिपा न सका। अवाम में शोर व गहमागहमी बढ़ गई, उम्मीद और डर दोनों एक साथ। पहला मुकद्दमा बड़े नर्म अंदाज में शुरू हुआ। दो भाई, जिनके नाम आरिफ और हामिद थे, दोनों खड़े थे। दोनों के चेहरे पर थिकन और आंखों में मायूसी थी। आरिफ ने कहा, बादशाह सलामत, ये मेरी विरासत है। ये जमीन मेरे वालिद ने मुझे दिखाई थी। मेरे पास उसकी निशानियां हैं, एक बोढ़ा अमरूद का दरख्त और एक पत्थर जो खानदान के निशान के तौर पर रखा गया था। हामिद ने जवाब दिया, ये झूठ है। वो खुद अपनी जमीन बढ़ा चढ़ाकर बताता है। मेरी संदें भी हैं और मोहल्ले के 2 लोग उसकी गवाही दे सकते हैं। वजीरों ने तेजी से बातें बना दी, झूठे गवाह दरकार करके मुकदमा को उलझाने की कोशिश की, मगर सलीम ने दोनों की आंखों में देखा और अपने अंदाज में बोलना शुरू किया। सबसे पहले तुम दोनों को अलग अलग सुनने देना चाहिए। आरिफ, तुमने कहा कि तुम्हारी जमीन के किनारे पर वो अमरूद का दरख्त है। बताओ, इस दरख्त तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? आरिफ ने ठहर कर जमीन की तरफ इशारा किया और ऐसी तफसील बताई कि जिससे मालूम हुआ कि वो दरख्त किसी खास मंजिल की निशानी रहा। फिर सलीम ने हामिद से कहा कि वो अपना रास्ता बताए। हामिद की कहानी में छोटे छोटे तजादात थे। रास्ते के कदीम निशान बदलते बदलते बताए गए। सलीम ने उन तजादात को परस्कून अंदाज में सामने रखिए और कहा, तुम दोनों ने अपनी जमीनों को सजा संवार कर अपने अंदाज से बयान किया, मगर सच वही है जो जमीन की आवाज है। फिर सलीम गांव के एक बूढ़े को बुलाया जिसने दहाइयों इस जमीन के हालात देखे थे। इस बूढ़े ने बताया कि अमरूद का दरख्त 50 साल पहले इसी जगह था जहां आरिफ ने बताया। इसके अलावा सलीम ने जमीन की ऊंचाई, खड़ी हुई झाड़ियों और छोटी चट्टानी निशानों के हिसाब से नक्शा खींचकर एक मंतिकी तरतीब बताई, जिसमें दोनों भाइयों की जमीनें वाज़ेह हो गईं। जब फैसला आया तो बादशाह ने खुद सुना और खुश हुआ। सलीम ने अदल के साथ जमीन का बंटवारा किया, हर भाई को उसका हक दिया और इस तरतीब को असातिज़ा अदब की तरह वाज़ेह कर दिया कि झूठ बोलने से हक नहीं मिलता। अवाम ने तालियों की गूंज में एक बार फिर उम्मीद महसूस की। दूसरा मुकदमा ज्यादा नज़ाकत वाला था। 2 ताजिर, यूसुफ और शाहनवाज, दोनों सरपरस्त और सहबत में जाने माने लोग थे। यूसुफ का दावी था कि शाहनवाज ने उसके माल को उधार लिया और वापस नहीं किया। शाहनवाज ने जबरदस्त इनकार किया और कहा कि इधार की रकम तब्दील हो चुकी है या कभी न थी। वजीरों ने झट से दोनों तरफ के करीबी रिश्तेदारों को घसीट कर दरबार को शूर में बदल दिया, मगर सलीम ने मामला को दूसरे रख से देखा। इसने दोनों ताजरों की तिजारत के किताबचे मांगे, मगर एक के पास हिसाब चक्कर में उलझे हुए थे और दूसरे के पास सही सही रेकार्ड। यूसुफ के हाथों में कुछ तराशी हुई छोटी सी रसीद थी जो शायद किसी मुमासिल रकम की थी, मगर तारीख और निशानियां मुख्तलिफ थीं। सलीम ने पूछा, तुम दोनों ने किस दिन 12 घंटे में सौदा किया था? किस वक्त माल आ निकला और किस वक्त गया? क्या किसी ने गवाही दी? दोनों ने जवाबात में खोखलेपन दिखाए। तब सलीम ने शहर के एक बूढ़े माल बरदार को बुलाया जो अक्सर इन ताजरों के साथ काम करता था। उसने बताया कि इसी वक्त एक ढाकिया आया था जिसने माल ले जाने के बहाने और लोट फांट की कहानी सुनाई थी।
फिर अहम बात ये सामने आई कि यूसुफ ने किसी दूसरे शहर के ताजिर को रकम की अदायगी करके अपनी रकम छिपाई थी, एक तरह का कर्जा जो उसके कागजात पर नहीं था। सलीम ने पुरस्कून लहजे में कहा, जब तिजारत में शफ़ाफियत न हो तो अल्जाम तराशियां बढ़ती हैं। तुम दोनों की किताबत में तजाद है, मगर ताजिरों के बीच जो सच्चाई बनती है वो लोगों के दस्तख्त और वो लोग बताएंगे जिन्होंने माल उठाया या पहुंचाया। आखिरकार सलीम ने दोनों की किताबत पर गौर करके गवाहों की शहादत और शहर वालों की याददाश्त को मद्देनजर रखते हुए अदल का फैसला दिया। यूसुफ को साबित करना पड़ा कि वो ने माल हकीकी तौर पर दिया था, वरना वो अपनी गलती तस्लीम करे। यूसुफ ने शर्मिंदगी के साथ मोतरफ होकर कहा कि उसने अद्धार बदल लिया, मगर तहरीरी सबूत न होने की वजह से माफी मांगी। सलीम ने दोनों को समझाया कि तिजारत में शफाफियत जरूरी है और आइंदा तहरीरी रसीद और गवाहों के साथ ही लेन देन करें। इस तरह न सिर्फ तिजारती शराकत महफूज रहेगी, बल्कि लोगों का एतमाद भी बहाल होगा। बादशाह ने कहा, यह हुक्म आदलाना और अमली है, और वही फैसला अमल में लाया गया। इन मुआमलात के बाद दरबार में जो सुकूत हुआ वो इतना गहरा था कि हर कान में सच सुनाई दे रहा था। बादशाह ने कहा, यही इंसाफ है जिसकी मुझे चाह थी। अवाम के चेहरों पर मुस्कान लौट आई, मगर वजीरों के चेहरे पहत्तर गए। वो अपनी जगहों में इधर उधर से सर घुमाकर देख रहे थे, उनके मंसूबे बार बार नाकाम हो रहे थे। वजीरों ने फैसला किया कि उस ईमानदार आदमी को खत्म करना जरूरी है, वरना उनका सब खेल खत्म हो जाएगा। एक रात उन्होंने मिलकर मंसूबा बंदी की वो सलीम के खिलाफ अफवाहें फैलाएंगे, इसकी सच्चाई को बेमानी करेंगे और बादशाह का एतमाद दोबारा हटाने की कोशिश करेंगे। वजीरों ने अपने उसरूर सुख को इस्तेमाल करते हुए जगह जगह गपशप बनवानी शुरू कर दी। कहा गया कि सलीम बादशाह के सामने सिर्फ शहरत बनवाने की खातिर ऐसा करता है, इसका मकसद मकाम और मोतबर बनना है। मगर आवाम ने अब सीख लिया था कि हकीकत क्या होती है। वो वजीरों की साजिशों को पहचानने लगे। कई गांव वालों ने दरबार में खड़े होकर बादशाह के सामने अपनी कहानियां सुनाएं कि किस तरह सलीम ने उनकी मदद की थी। बादशाह, जिसका दिल नर्म और इंसाफ पसंद था, हर बार सलीम के फैसलों से मुतासिर होता रहा। वो अक्सरियती अवाम की सच्चाई देख रहा था। बादशाह के अंदर एक तब्दीली आ चुकी थी। वो चाहता था कि मुल्क में ऐसा वजीर हो जो हर दिल का मरहम बने, न कि वो लोग जो खुद दौलत और इज्जत के पीछे भागते हों। यहां तक के वाकयात ने गांव की दुनिया बदल दी थी। इंसाफ के फैसलों ने लोगों में वो एतमाद बिहाल किया जो बरसों बंद था। सलीम की शहरत अब सिर्फ गांव तक महदूद न रही, बल्कि मोहल्ला से बाहर करीबी कस्बों तक फैल गई। लोग दूर दराज के मसाइल लेकर आते और सलीम को अपने रिंज और गम बताते, मगर वजीरों ने राजी ना होने का जबरन रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने अब बादशाह के कानों में ये बातें डालनी शुरू की कि अगर सलीम को ज्यादा ताकत दे दी गई तो वो खुद बादशाह के सामने से इख्तिदार छीन लेगा। उन्होंने छोटी छोटी बातों को बड़ा करके बादशाह के दिल में शुकूक डालने की कोशिश की। बादशाह, जो कि इंसानी था, कभी कभी सोचने लगा कि क्या वाकई कोई आम इंसान एक ही बार में इतना बदल सकता है? क्या मुमकिन है कि सलीम के अंदर भी कोई राज हो? लेकिन अवाम ने सलीम के हक में अपनी आवाज बुलंद रखी। गांव की बुजुर्गान ने मिलकर बादशाह से अर्जी लिखी कि सलीम के फैसले बेगरज और अवामी मफाद में हैं। बादशाह ने उन अर्जियों को अपने सीने के करीब रख लिया। रात हुई तो महल के बाग में बादशाह तन्हा बैठा। उसने सतारों की तरफ देखा और दिल ही दिल में सोचा, ऐसा कौन है जो हक व इंसाफ के लिए दिल से खड़ा हो? खुदा करे कि मैं ऐसा आदमी अपनी खास खिदमत में लगाऊं। बादशाह ने फैसला किया कि उसका अगला इम्तिहान बहुत बड़ा होगा, एक ऐसा इम्तिहान जिसमें अवाम का ईमान, सलीम की सच्चाई और वजीरों की हकीकत सब एक साथ सामने आएंगे। इस इम्तिहान के बारे में बादशाह ने अभी किसी को कुछ न बताया, मगर उसने अपने दिल में एक नया इज़्म कर लिया। दरबार में 3 मुकदमात के फैसलों के बाद अवाम में खुशी और सुकून लौट आया था। गांव के लोग अब खुलकर बात करने लगे थे। वजीरों का खौफ कम हो रहा था और सब सलीम की सच्चाई को सराहने लगे थे। लेकिन वजीरों के दिलों में हसद की आग भड़क रही थी। एक रात वजीर आजम ने बाकी वजीरों से कहा, हमने कई बार कोशिश की, मगर हर बार नाकाम हुए। अब अगर हमने फैसला कुन चाल न चली तो हमारा अंजाम करीब है। उन्होंने एक नया मंसूबा बनाया।
अगले दिन वो बादशाह के पास गए और कहा, जहां पनाह, हमने सुना है कि सुलीम अवाम में ये कहता फिरता है कि एक दिन वो आपकी जगह इंसाफ करेगा और रियाया उसकी बात सुनेगी। ये तो वाज़ह बगावत है। बादशाह ने गहरी नजर से वजीरों को देखा। दिल ही दिल में वो जानता था कि ये सब झूठ है, मगर उसने कुछ ना कहा। उसके जिहन में एक बड़ा इम्तिहान पहले ही तैयार था। उसने सोचा, अब वक्त आ गया है कि मैं सब कुछ खोल कर रख दूं। अगले दिन बादशाह ने दरबार सजाया और पूरे गांव के नुमाइंदे, वुज़रा और मुअज़्ज़िज़ीन को बुलाया। दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा और बुलंद आवाज में कहा, मैं आज ऐलान करता हूं कि जो शख्स मेरे सामने आने वाले सबसे बड़े मुकदमे में सही इंसाफ करेगा, वो मेरा वजीर खास होगा। अगर वजीरों में से कोई कामयाब हुआ तो वो अपनी कर्सियों पर बाकी रहेगा, वरना उन सबको माजूल कर दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही वजीरों के चेहरे फिक हो गए। उन्हें अपनी नाअहली का अच्छी तरह अंदाजा था। अवाम ने खुशी में नारे बुलंद किए। सुलीम खामोशी से दरबार के कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर सुकून और अल्लाह पर यकीन की झलक थी। मुकदमा 3 फरीकों के दरमियान था। एक किसान कहता था कि उसकी जमीन से अनाज चराकर दूसरे ने बेचा है। दूसरा कहता था कि उसने अपने पैसों से खरीदा है। तीसरा शख्स कहता था कि दोनों झूठे हैं और असल जमीन उसकी है। ये एक ऐसा झगड़ा था जिसने पूरे गांव को उलझा दिया था। वजीरों को हुक्म दिया गया कि फैसला करें। वो बार बार कागज देखते, दलीलें देते, मगर बात कहीं से कहीं निकल जाती। अवाम शूर मचाने लगी, ये इंसाफ नहीं, ये सिर्फ वक्त जाये कर रहे हैं। बादशाह ने हाथ उठाया और कहा, बस अब सलीम फैसला करेगा। सलीम आगे बढ़ा। उसने तीनों फरीकों को अलग अलग खड़ा किया। फिर उसने कहा, जमीन कभी झूठ नहीं बोलती, झूठ इंसान बोलते हैं। मुझे इस जमीन पर ले चलो। सब लोग काफले की शक्ल में वहां पहुंचे। सलीम ने खेत को गौर से देखा। उसकी मिट्टी को हाथ में लेकर सोंघा, पुरानी निशानियों पर ध्यान दिया। इसने बुजुर्गों को बुलाया, जिन्होंने बताया कि बरसों पहले ये जमीन फिला खानदान की थी। सलीम ने उनकी गवाही के साथ पुराने रास्ते, खाल और दरख्तों को बुनियाद बनाया। फिर उसने तीनों आदमियों से सवाल किए, जिनके जवाब में एक शख्स बार बार फंस जाता और तजाद में बात करता। आखिरकार सलीम ने फैसला दिया, ये जमीन असल में इस किसान की है जिसके पास आबाओ अजदाद के कागज और गवाही मौजूद हैं। बाकी दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक ने लालच में आकर बेचा और दूसरे ने धोखे से खरीदने का दावी किया। आवाम ने जोरदार नारे लगाए, जिंदाबाद इंसाफ, जिंदाबाद सच्चाई। बादशाह ने खुश होकर कहा, यही वो इंसाफ है जिसकी मैं तलाश में था। सलीम आज से मेरा वजीर खास है। ये ऐलान होते ही वजीरों के कदम लड़खड़ा गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि सब पुराने वजीर माजूल कर दिए जाएं। वो लोग जो बरसों आवाम का खून चूसते रहे, आज सबके सामने रसवा हुए। सलीम को जब बादशाह ने वजीर खास बनाया तो वो आजिजी से बोला, जहां पनाह में कोई बड़ा आदमी नहीं, सिर्फ एक बंदा हूं जो अल्लाह पर भरोसा करता है। अगर आपने मुझे इज्जत दी है तो ये मेरे रब की अता है। मेरा वादा है कि मैं कभी नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बादशाह ने कहा, यही आजिजी तुम्हें हम सबसे अफजल बनाती है। अब गांव में एक नया निजाम कायम हुआ। टैक्स की लूट मार खत्म हुई। नहर का पानी सब खेतों तक पहुंचने लगा। औरतों की इज्जत महफूज हो गई। मजदूर को उसकी मजदूरी बरोकत मिलने लगी। सलीम ने हर फैसला अदल पर किया, न किसी की सिफारिश चलती न दौलत का लालच। अवाम अब फख्र से कहती थी, यही है वो किस्मत का इनाम जो हमें मिला है, एक ऐसा वजीर जो हमारे दिलों की आवाज है। बादशाह भी मुतमईन था कि अब उसके पास एक ऐसा साथी है जो अवाम के दुख दर्द बांटता है और उनका हक दिलाता है। किस्मत का इनाम यही है कि जो शख्स ईमान, सब्र और सच्चाई पर डटा रहे, अल्लाह ताली एक दिन उसे इज्जत और मकाम अता करता है। झूठ और फरेब वक्ती कामयाबी देते हैं, लेकिन अंजाम में रसवाई मुकद्दर बनती है। जो दूसरों का हक दिलाता है, अल्लाह उसके हक की हिफाजत खुद करता है।